Good evening, all my dear students. I hope you all are happy, healthy, and safe at your home. Yes, this is your EVS class, and we are doing our chapter number 12, and its name is Our Country. So, as you all know, that yesterday we discussed the main physical features of our country, or we can say that some landforms of our country, and these are the northern mountains, the northern plains, the great Indian deserts, the southern plateaus, the coastal plains, and the island regions. The northern mountains, the northern plains, the great Indian deserts, yesterday ये थ्री हमने जो मेन फिजिकल फीचर्स थे इंडिया के ये कल हमने डिस्कस किए थे. three are still remaining: the southern plateaus, the coastal plains, and the island regions. So today we are going to discuss these three remaining physical features of our country. Yes, yesterday you know that we discussed the northern mountains. So as you know that we have two mountain ranges in our country, Karakoram range and Himalayan range. Second is the northern plains. The northern plains means कि जो flat areas होते हैं and some cities which are in the northern plains are Varanasi, Agra, Delhi, etc. And you know that crops can be grown very easily in these northern plains. Next is the Great Indian Desert. The Great Indian Desert is also known as the Thar Desert, and it lies in the northwest direction of our country, and it is located in Rajasthan. कहाँ पे है ये desert? राजस्थान में. And you know that Udaipur, Jaipur, Jodhpur, these cities are in Rajasthan, and it is included in Great Indian Desert. Mainly camel, deer, peacock, these animals are found in Rajasthan, or we can say that in the Great Indian Desert. Yes, so our next topic is the southern plateau. So today we are going to discuss these three remaining physical features of our country. The next fourth one is the southern plateau. The southern plateau lies to the south of the northern plains. जो southern plateau है ये कहाँ पे लाई करता है? नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में. As you can see in the physical map of India also that this is the northern plain, and northern plain के south में this is the south of this northern plain, and here lies southern plateau. यहाँ पे क्या है? southern plateau लाई करता है, and it is also known as Deccan Plateau. This southern plateau is also known as Deccan Plateau. ये cover करता है southern plateau. देखिएगा, this large area is called the southern plateau. Yes, in the east side of this southern plateau, this is the east side, this is the west side. So जो east side है, it is covered with some hills. ये hill से covered है, and it is known as Eastern Ghat. यहाँ पे जो hills हैं इसको और क्या कहते हैं? Eastern Ghat. And in the west of this southern plateau, this is the west of this southern plateau, यहाँ पे it is also covered with hills. ये भी hills से covered है, and it is known as Western Ghat. And it separates, this southern plateau separates from the northern plains by the hills. ये कौन सी हिल से सेपरेट हो रहे हैं? सतपुरा एंड विंध्या हिल रेंज. जो सतपुरा और विंध्या हिल रेंज से ये सेपरेट हो रहा है किससे? द नॉर्दर्न प्लेन से. यस, जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट आर स्लाइटली हायर देन ईस्टर्न घाट्स. जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो हाई होते हैं, ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट से. द प्लेट्यूज फॉर्म अ पेनिनसुला. जो प्लेट्यूज हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? पेनिनसुला. जो ये प्लेट्यूज हैं, साउदर्न प्लेट्यूज, दे फॉर्म अ पेनिनसुला. व्हाट डू यू मीन बाय पेनिनसुला? यस, पेनिनसुला इज दैट विच इज सराउंडेड बाय वाटर. इट इज अ लैंडफॉर्म. एक लैंडफॉर्म है जो कि किससे कवर्ड होता है? चारों तरफ से, साइड्स में से वाटर से कवर्ड होता है. सो इंडियन पेनिनसुला इज कवर्ड बाय, और इट इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल in the. Yes, this is your physical map of India. Now you can see in the east direction.
This is the peninsula and it is covered with Bay of Bengal. This is Bay of Bengal, this is Indian Ocean and this is Arabian Ocean. So this is the east, this is west and this is south. So in the east it is covered with Bay of Bengal. In the south it is covered with Indian Ocean and in the west it is covered with Arabian Sea Peninsula. Okay. Now the main rivers in this region are, जो मेन रिवर्स इस रीजन में फ्लो करती हैं, दैट आर गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा एंड कावेरी. These are the four main rivers that flows through this region. Godavari, Krishna and Kaveri rivers flow from west to east. Godavari, Krishna and Kaveri, these are the rivers which are flowing from west to east into the Bay of Bengal. Yes, Godavari, Krishna and Kaveri, these are flowing from west to east, जो west से east में flow करता है and flow in the Bay of Bengal, और last में it falls in the Bay of Bengal. Last में Bay of Bengal में आके गिरती हैं ये rivers. Why these rivers fall in the Bay of Bengal? ये सारी rivers यहाँ से flow करके Bay of Bengal में ही क्यों fall करती हैं? Because जो plateau है वो slants है, ठीक है, वो ऐसे slanting way में है, ठीक है, that's why it falls in the Bay of Bengal. But Narmada and Tapi river, they fall in the Arabian Sea. वो कहाँ पे आके मिलती हैं? Arabian Sea के अंदर. Many people live in this region. बहुत सारे लोग इस region में रहते हैं. The main crops grown here are cotton, oilseed, millets and wheat. जो ज़्यादातर यहाँ पे crops जो mainly grow की जाती हैं, these are cotton, कपास, oilseeds, millets and wheat. ये क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो की जाती हैं. टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस आर ऑल्सो फाउंड हेयर. यहाँ पे टी और कॉफ़ी का भी प्लांटेशन होता है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज इन दिस रीजन आर पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई. जो कुछ इम्पोर्टेंट शहर हैं यहाँ पे जो कि यहाँ साउदर्न प्लेट्यूज में हैं, दैट आर पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई. यस, नेक्स्ट फिफ्थ वन इज द कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल मीन्स, कोस्ट मीन्स कि तटीय एरिया जो समुद्र के पास होता है. इट मीन्स कि ओशियंस या सी के आसपास में होगा, ठीक है. सो ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला आर द कोस्टल प्लेन्स. यस, दिस ग्रीन पार्ट इज द कोस्टल प्लेन. ये देखिएगा, कोस्टल मीन्स कि जो समुद्र के पास में हो, ठीक है. And this area is covered with Bay of Bengal. It touches with the Indian Ocean and it touches with Arabian Sea. And you can see this coastal plain in the west is narrow than the coastal plain in the east. ये जो यहाँ पे ये देखिएगा कितना नैरो है, कितना पतली सी स्ट्रिप दिख रही है. एंड यहाँ पे ये जो एरिया आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है. यहाँ पे इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ही कम एरिया है एंड यहाँ पे ज़्यादा है. इट मीन्स कि दिस इज नैरो देन दिस ईस्टर्न साइड, दिस इज द वेस्टर्न साइड एंड दिस इज द ईस्टर्न साइड. सो आपको दिख रहा होगा यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे ये कितना नैरो है, बहुत ही कम है देन ईस्ट साइड. यस, द क्लाइमेट ऑफ द एरिया इज प्लीजेंट. जो क्लाइमेट होता है यहाँ का वो कैसा होता है? प्लीजेंट होता है, बहुत ही सुहावना होता है. कोकोनट ट्रीज, यस, आपको पता ही होगा कि जिसको आप कहते हैं ना बीच, ठीक है. कोस्टल एरियाज जो होते हैं, दीज आर द कोस्टल प्लेन्स. कि यहाँ पे सामने देखिएगा समुद्र है एंड यहाँ पे लैंड है, ओके. सो आप जिसको बीच कहते हो, सो बीच जो है वो क्या होता है? कोस्टल प्लेन्स होते हैं. एंड यू कैन सी दैट coconut trees and you know that coconut trees are grown in the coastal plains areas. So mostly coconut trees grows naturally along the coastlines. जो कोस्ट लाइन्स होते हैं कि जो समुद्र के किनारे पे जो कोस्ट लाइन होती है, दिस इज द कोस्ट लाइन, ठीक है. सो कोकोनट ट्रीज ग्रोज हेयर नेचुरली. मैनी पीपल इन दीज एरियाज मेक अ लिविंग बाय फिशिंग इन द सी. और जो ज़्यादातर लोग हैं वो अपना जीवन व्यापन किस पे करते हैं? बाय फिशिंग इन द सी. कि जो सी के अंदर जो फिश होती है उन फिश को पकड़ के एंड देन दे सेल इन द मार्केट. मैनी टूरिस्ट विजिट्स द बीचेस.
मैनी टूरिस्ट विजिट द सी बीचेस टू स्पेंड देयर हॉलीडेज। बहुत सारे टूरिस्ट भी जाते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट भी जाते हैं कहाँ पे, सी बीचेस पे, किस लिए, टू स्पेंड देयर हॉलीडेज। आप लोग भी जाते होंगे ना कि जब भी आपके हॉलीडेज होते होंगे, समर वेकेशंस, सो आप जाते होंगे कि अपने हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए बीचेस के ऊपर। दिस हेल्प्स द लोकल पीपल विद द वे ऑफ अर्निंग देयर इनकम्स। तो जो टूरिस्ट जो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जो अपना हॉलीडेज स्पेंड करते हैं, तो उनकी हेल्प से जो वहाँ के लोग हैं वो अपनी अर्निंग कमा पाते हैं, सो दैट दे कैन लिव देयर लाइफ। लास्ट वन इज द आइलैंड रीजन। The island region, an island is an area of land completely bordered by water. आइलैंड क्या होता है, एक एरिया ऑफ लैंड, वो एरिया ऑफ लैंड होता है जो कि जिसके बॉर्डर पे सिर्फ क्या होता है, पानी ही पानी होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, द अंडमान निकोबार आइलैंड। दिस इज द अंडमान निकोबार आइलैंड, कि इस पे देखिएगा सब जगह पे क्या है, पानी ही पानी है। एंड इट इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के ईस्ट में है क्या, अंडमान निकोबार। द लक्षद्वीप आइलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ द अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप आइलैंड है, दिस इज द लक्षद्वीप आइलैंड एंड इट इज लोकेटेड टू द वेस्ट इन द अरेबियन सी। जो अरेबियन सी का वेस्ट है वहां पे क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड। यस, यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो कि अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल के कहाँ पे है, ईस्ट में। दिस इज बे ऑफ बंगाल एंड इसकी ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, अंडमान एंड निकोबार। एंड अरेबियन सी, दिस इज द अरेबियन सी, अरेबियन सी के क्या है, वेस्ट में है। मैनी ट्राइब्स लिव ऑन दीज आइलैंड्स। बहुत जनजातियां इन आइलैंड्स पे रहती हैं। दे आर कनेक्टेड टू द मेन लैंड्स थ्रू वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट्स। और वो कैसे कनेक्ट करते हैं मेन लैंड से, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट्स। और वो लैंड से, जो मेन लैंड्स होते हैं उनसे कैसे कनेक्ट करते हैं, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट से। वाटर मीन्स कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट्स होते हैं लाइक शिप्स, बोट्स, क्रूज, एंड एयर ट्रांसपोर्ट्स मीन्स कि थ्रू एयरवेज, फ्लाइट से, प्लेन से। मैनी पीपल गो टू द आइलैंड बीचेस फॉर हॉलीडेज। बहुत सारे लोग आइलैंड बीचेस पे जाते हैं फॉर हॉलीडेज, हॉलीडेज अपनी छुट्टियां व्यतीत करने। Yes, this is the Andaman Nicobar Island and this is the Lakshadweep Island. You can see in the picture also that this land is covered with water and water everywhere. कि लैंड के देखिएगा चारों तरफ क्या है, आपको पानी ही पानी दिख रहे हैं। So these are the islands.